Hello and welcome to the next video of chapter Similarity. We have started with the practice set 1.3. We are done with the first three problems of practice set 1.3. Today we're going to continue with the practice set. But before we actually start our practice set 1.3, start solving the remaining sums of practice set 1.3, I just want to quickly revise a few topics which you all have studied previously, which will be used in your practice set. Okay, so these concepts are corresponding angles, alternate angles, and interior angles. Corresponding angles you have already used in the third sum, I think, of practice at 1.2. So we quickly want to revise what that is, and maybe if you haven't understood that particular sum very well, you all can revisit that video again after going through all this. Okay, so assume I have two lines which are parallel to each other. Okay, two lines which are parallel to each other, and then I have a transversal. Okay, what's a transversal? जो दो parallel lines को cut करेगा, that is known as a transversal. Okay, so for corresponding angles you will always look out for the letter F. Okay, capital F. So जहाँ पे भी तुम लोग को F दिखेगा वहाँ पे corresponding angles होने चाहिए. But what are the two conditions? First, you should have two parallel lines and a transversal. Okay, so where can you all see the F forming here? I can see one F forming here, right? These are the two horizontal line, this is the vertical line. So यहाँ पे एक F form हो रहा है. So where are the angles? This is one set of corresponding angle. अगर ये तुम्हारा capital F है, so these are corresponding angles. Okay, that is one set of corresponding angles. यहाँ पे और भी corresponding angles है. For example, यहाँ पे उल्टा F बन रहा है, right? किस shape में? First shape कौन सा था? First shape ये था. Okay? सेकेंड शेप ऐसा उल्टा एफ बन रहा है, राइट? सो ये तुम्हारा सेकेंड शेप है, उल्टा एफ बन रहा है. ओके, सो देन व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग एंगल्स? यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे और यहाँ पे मिले थे, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे और यहाँ पे मिल जाएंगे. सो अगेन दिस इज अनदर सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, सिमिलरली लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में यहाँ पे अगेन एक उल्टा एफ दिख रहा है. So here if you can see this shape, यहाँ पे ऐसा भी एक शेप दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में. So again यहाँ पे corresponding angles कहाँ पे बनेंगे? यहाँ पे. Okay, this is one, this is the other. So this will be one set of corresponding angles. This, okay, the two crosses in red color. Okay, and last if you see here, यहाँ पे again एक उल्टा F दिखेगा इस तरीके से, isn't it? So where will be the corresponding angles? They will be here. Okay, so in the figure this is another set of corresponding angles. Okay, so within this you have four sets of corresponding angles. एक है ये blue में जो x ड्रॉ किया है, फिर बाद में red में जो circle ड्रॉ किया है, next red में जो cross ड्रॉ किया है, and blue में जो circle ड्रॉ किया. These are all sets of different corresponding angles. What do you need for corresponding angles? दो लाइन पैरेलल होने चाहिए और F फॉर्म होते हुए दिखना चाहिए. अभी F वो उल्टा हो सकता है, सीधा हो सकता है, किसी भी तरह हो सकता है. You should be able to see that F. Okay, so if you see यहाँ पे दो, हमेशा दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है, and these are the corresponding angles. So this concept we had used in one of the sums in practice at 1.3. Okay, now we'll come to alternate angles. So again the condition is same for alternate angles also. You need two parallel lines and one transversal. Okay, now for alternate angles you have to always look out for the shape capital Z. Okay, always look out for the shape capital Z. So I can see my first capital Z is being formed here, right? यहाँ पे एक Z form हो रहा है. So मेरा कौन सा angle होगा? This and this. These will be forming alternate angles. That is one set. एक और Z बन रहा है. So first one we saw was this shape. Okay, and where were the corresponding angles? The corresponding angles were here. First angle, second angle. Sorry, these are not corresponding. These are alternate angles. So where was the first set of alternate angles? Here and here. When I saw a Z. Okay, another Z I can see is ulta. यहाँ पे. Okay, the shape forming is this and this. This does not really look like a Z, but ये भी एक Z की तरह दिख रहा है. अगर इस लाइन को थोड़ा यहाँ पे खींच लो, उस लाइन को थोड़ा वहां पे खींच लो, तो तुम लोग को Z दिखने लग जाएगा. So where will be your alternate angles here? Your alternate angles will be, this will be one angle, this will be the other alternate angle. Okay, so here in this figure
first angle, second angle. This is also a pair of alternate angles. So corresponding angles are always equal, alternate angles are always equal. So ये जो दो crosses है, दोनों का angles का value same होगा. यहाँ पे जो दो red circles है, उनका भी angles का value same होगा. Same for all this. ये वाला x और ये वाला x value will be same. This circle value will be same, so on and so forth. All the corresponding angles will be equal, all the alternate angles will be equal. Okay, next, interior angles, last. So the condition remains same. You need two parallel lines and you need a transversal. Now for interior angles, you will look out for the shape of C. Okay, you will look out for C shape. So यहाँ पे पहला C shape कौन सा दिख रहा है? You can see it here, isn't it? यहाँ पे एक C shape दिख रहा है. So this will be first and this will be second. Set of interior angles. और interior angles में क्या होता है? X plus X will give you 180. Interior angles equal नहीं होते. If you see carefully, यहाँ पे obtuse angle है, यहाँ पे acute angle है. तो ये दोनों equal नहीं है. But क्या होगा उनका property? दोनों को add करके 180 डिग्री आएगा. That's the property of interior angles. Alternate और corresponding angles में both of them are equal. Another C, where can you see? यहाँ पे उल्टा C दिख रहा है, right? उल्टा C. तो यहाँ पे another set of alternate angles is this. So again, 0 plus 0 will be 180 degrees. So these are your corresponding angles, alternate angles and interior angles. You should know these things very well because geometry में हर कहीं पे कहीं ना कहीं in some or the other sum these concepts are going to be used and you should be very clear how do you find corresponding angles within a given figure, how do you find alternate angles within a given figure, so on and so forth. Okay, so that you can use these properties and solve the sum whichever is given to you. Okay, so kindly copy all this and now we'll move on to the remaining sums of practice at 1.3. That we have studied corresponding angles, alternate angles, and we have studied interior angles, right? Now that we know what those are, now we can start solving the remaining sums of the practice set 1.3. Okay, so last video we had completed practice set ka first three questions and this is the fifth question, right? So the fourth question we will solve at the end. We are going to begin with fifth question. Most of the questions you all are going to solve by yourself. Okay, so keep your pens and books ready and also keep your textbook ready if you want to see the question within the textbook. Okay, so take the next 5 seconds. Okay, I am going to wait for 5 seconds. You all pause the video and take how much ever time you all want to read the question and just think about how you will solve the question. Okay, I'm going to wait for 5 seconds for you all to pause. Okay, I hope you all pause the video and have some idea about how you will solve the problem. Okay, so let me read it. In trapezium PQRS. So first question is what is trapezium? So trapezium is a four-sided figure जिसमें at least one pair of opposite sides should be parallel. I'm going to repeat that. Trapezium is a four-sided figure जहाँ पे at least one pair of opposite sides should be parallel, not equal but parallel. Okay. So trapezium PQRS, you can see the figure here. इसमें क्या दिया है? Sides parallel PQ and SR. So PQ is parallel to SR, that is given in the question. Then they have given a few values. Okay, AR is equal to 5AP, AS is equal to 5AQ, and then they have asked you to prove SR equal to 5PQ. Okay, so first remember which chapter is this? This is similarity, and the entire practice set is based on similarity of triangles. Okay, that is one hint you all need. Another hint you all need is just see these sides. Okay, AR, where is AR? Over here. Okay, next, where is AP? AP is over here. Next, AS is over here. AQ is over here. ये सब मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ? यहाँ क्वेश्चन में से. क्वेश्चन में there's AR, AP, AS, AQ. वो सब मैं देख रहा हूँ कि डायग्राम में कहाँ पे आ रहा है. Okay, so far ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया. Then AQ has come and AS has come. Rest, what are they asking us to prove? SR and PQ. Where is SR? SR is down here and PQ is up here. So all, if you noticed carefully and if you were paying attention very carefully, जो कोई भी साइड्स दिए हैं और जो कुछ भी प्रूव करने बोला है, all of them are sides of two triangles. First triangle is ASR, the second is AQP. These two triangles, the sides given in the question are part of these two triangles. I'll repeat the triangles. कौन से? ऊपर वाला, basically ऊपर वाला triangle और ये नीचे वाला triangle. इनके sides के बारे में थोड़ा information दिया, उनके sides के related ही हमें prove that दिया. Okay, so again the hint was क्या कि पूरा practice set similarity of triangles के बारे में. So first you will prove that ये ऊपर वाला छोटा triangle और ये नीचे वाला बड़ा triangle are similar, and once you prove that using whatever is given,
and using property of similar triangles you all can prove this. Okay, so the first step is obviously going to be that you have to prove these two triangles are similar. Now there are no साइड का वैल्यूज गिवन, राइट? तो तुम लोग रेशियो नहीं निकाल सकते, वरना रेशियो निकाल के तुम लोग चेक कर लेते हैं एस एस टेस्ट से या एस 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 टेस्ट से. Here I know that PAQ, angle PAQ and angle RAQ both will be equal. Why? Vertically opposite angle, right? So QAP and SAR, these two angles will be equal because they are vertically opposite angles. तो एक angle तो मिल गया, but you need one more angle to be congruent. Only then you can say कि ये दोनों similar है. So which will be that? So the hint is it is a trapezium, right? Trapezium में तो PQ and SR is parallel. So can you see a Z forming? I can see here PQSR. Okay, PQSR. So which angles will be congruent? PQS and QSR. These two angles will be congruent because I can see a Z forming, right? And the reason will be they are alternate angles. So उससे तुम लोग को एक और angle congruent prove हो जाएगा. Then you can say that using AA test that both the triangles are congruent. Okay, so not congruent, both the triangles are similar. So now you'll know how to solve the sums. You are first going to prove that those two alternate angles are equal. Then you will consider the triangles, show that the two angles are equal, and tell that it is the two triangles are similar triangles. Then we'll see what to do ahead. Okay, so at least do till that. I'm going to wait for 5 seconds. Pause the video here. और जितना भी मैंने explain किया, जिस तरीके से वो दो triangles को similar prove करना है, do that. Okay. Okay, I hope either you have completed proving that the two triangles are similar, or you have at least tried. Even if you have tried, that's okay, because you're going to learn now when I actually discuss the answer. So first क्या है, तुम लोग के alternate angles prove करने पड़ेंगे कि equal है. Okay, so first step was prove one set of alternate angles to be equal or congruent. Equal और congruent दोनों का meaning same है. So how will you do that? You will first say alternate angles के लिए you need two parallel lines and a transversal, right? So क्या parallel है, क्या transversal है, ये पहले लिखना पड़ेगा. So side PQ is parallel to side SR, ये पहले लिख दो, and ये given था, right? Next SQ is the transversal. SQ को transversal ले लिया, isn't it? Now you say कौन से equal है, कौन से angles equal है. So QSR. So QSR, this is the angle. QSR is congruent to angle SQP. So SQP, this is the angle. Okay, and the reason is alternate angles. Next, भी QSR जो angle है उसको ASR लिख दिया. See, QSR कहाँ पे है? QSR. Here is the angle QSR. So QSR angle को ASR लिख दिया. क्यों? Because they know कि मुझे next step में वो दो triangles को similar proof करना है. इसमें मुझे triangle का angle लेना है, right? So triangle का angle QSR नहीं है, triangle का angle है ASR. Okay, it's the same angle, but naming में फर्क पड़ रहा है. So QSR को ASR कर दिया. उसका reason क्या है? Q dash A dash S. उसका मतलब क्या है? Q, A और S सारे एक लाइन पे लाई करते हैं. Okay, so that the angle remains the same. Similarly, SQP को AQP कर दिया. Which is SQP? SQP. This is the angle SQP. तो SQP के जगह पे AQP कर दिया. Again वो छोटे ट्राइंगल का एंगल हो जाएगा. The angle remains the same, but naming change हो जाता है ताकि वो एंगल का जो नाम है वो छोटे से ट्राइंगल के एंगल का हो जाए. ओके, एंड द रीजन इज गोइंग टू रिमेन सेम क्योंकि Q, A एंड S आर इन द सेम लाइन. ओके, सो दैट्स योर equation number 1. Okay, उसको equation number 1 दे दे because we know we are going to use it again while proving that these two triangles are similar. Now prove the two triangles are similar. Triangles को similar करने के लिए 3 steps होते हैं. We had seen in the last class, right? First step is consider the triangles. Second step is tell why the two triangles are similar. Lastly, conclude that the two triangles are similar giving appropriate reason. किस टेस्ट से वो प्रूव हो रहा है कि दोनों सिमिलर है वो भी बताना है. ओके, so you will consider the triangles ASR and AQP. ASR is here and AQP is here. Okay, then ASR congruent to AQP. ये 1 से आ गया, राइट? 1 में हम लोग ने alternate angles यूज करके प्रूव किया तो ये 1 से डायरेक्टली लिख दिया. नेक्स्ट SAR congruent to QAP. SAR is over here. SAR and QAP is over here. QAP. वो दोनों क्यों इक्वल है? Because they are vertically opposite angles, right? These are vertically opposite angles and they are congruent. So using AA test of similarity, angle test of similarity, ये दोनों triangles similar prove हो गए. Now use the property of similar triangles. So इसमें angles का property use नहीं करेंगे क्योंकि हमें prove क्या करना है? Sides के बारे में कुछ prove करना है तो sides वाला property use करेंगे कि सारे sides
प्रोपोर्शनल होंगे, राइट. सो यूज दैट प्रॉपर्टी. दे हैव वेरी केयरफुली टेकन कौन सा साइड लेना है. ओके, सो पहले वो लोग ने एएस ले लिया. सो एएस यहाँ पे है, तो एएस की करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ए क्यू. तुम लोग को डायग्राम की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है. यहाँ पे एएस ले लिया तो यहाँ पे ए क्यू ले लोगे. सो एएस अपॉन ए क्यू आ गया. फिर नेक्स्ट एसआर ले लिया अपॉन क्यूपी ले लिया. ओके, एंड दोस टू विल बी इक्वल. लास्ट कौन सा आएगा, ए आर अपॉन एपी. ए आर अपॉन एपी क्यों नहीं लिया, बिकॉज ना ही उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया है और ना ही उसके बारे में कुछ प्रूव करने बोला, इसलिए वो थर्ड जो साइड है उसको कंसिडर नहीं कर रहा है. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट वॉट एवर यू नो अबाउट दीज साइड्स, जस्ट सब्स्टिट्यूट. ओके, सो यू नो एस इज इक्वल टू 5 AQ, राइट. यहाँ पे एस है, एस इज इक्वल टू 5 AQ. सो अभी एस इज इक्वल टू 5 AQ तुम लोग ने अगर लिख दिया, सो ब्रिंग ए क्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 5 के नीचे फिर कुछ नहीं रहेगा, तो 5/1 लिख सकता हूं मैं, राइट. सो यू विल गेट ए एस डिवाइड बाई ए क्यू जो नीचे आ गया एज 5/1. वंस यू गेट दैट, ए एस अपॉन ए क्यू अगर 5/1 आ गया, बट ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू एस आर अपॉन पी क्यू, राइट. सो यहाँ पे और यहाँ पे एलएचएस सेम है. अगर दोनों के एलएचएस सेम है तो दोनों के आरएचएस भी सेम होंगे. कि आरएचएस इज राइट हैंड साइड. सो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया. सो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 व्हाट कैन आई से, कि दोनों के आरएचएस सेम होंगे, तो एसआर अपॉन पीक्यू विल बी इक्वल टू 5/1. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव रिटन हियर. ओके, एसआर अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू 5/1. तो ये हमें प्रूव करना था. नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. वंस यू क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट यू विल गेट, 1 SR is equal to 5 PQ. ये हमने को चाहिए था, right? SR is equal to 5 PQ. तो just cross multiply and you will get the required answer. Reason क्या लिखोगे, from 1 and 2. Okay. The last step is to write the final answer in pencil. So once you cross multiply, you will get whatever you needed. So उसको लिख दो and just box it up in pencil. Okay. So this was your question number 5. This can come for 3 marks. Okay. It was very easy. The only two important steps were proving the triangles similar. The second important step was using the property of similar triangles to give to prove whatever is asked. Okay, these were the two main steps. एक और step क्यों add हो गया, क्योंकि alternate angles use करके हम लोग को एक angle equal बताना था, इसलिए एक और step add हो गया. So that's your question for 3 marks, question number 5. Okay, next we are going to move on to the next question, which is question number 6. Okay, again we're going to do the same thing. Take 5 seconds, sorry, take how much ever time you need. I'll wait for 5 seconds for you to pause the video, read the question, see the diagram and think how you will solve the question. Then we'll come back together, play the video again, I'll discuss the problem and then you can try to solve it by yourself. Okay, okay, I hope you paused the video and you have read the question, you've understood the question and have some idea how you will solve the problem. Okay, so let's quickly discuss how can we solve this problem. Again, it's a 3 mark question in trapezium ABCD. So again, same shape hai, trapezium. Remember, any one pair of opposite sides should be parallel. Okay, so in trapezium ABCD, isme kaun se parallel hai, AB and DC are parallel, which is given here. Diagonals AC and BD intersect at point O. So ये diagonals है AC and BD, both of them intersect at point O. फिर बाद में values दे दिए. Okay, AB is 20, so यहाँ पे 20 है AB, DC is 6, OB is 15 and you have to find OD. So अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, right? क्योंकि ये values को मैं imagine नहीं कर पा रहा हूँ. So the first step I will do is, before solving the sum, I will draw a rough diagram और उसमें सब मार्क कर दूंगा. So now it's clear, right? मुझे easily दिख रहा है कि कहाँ पे क्या values है. So मुझे CD दिया है, BA दिया है, OB भी दिया है and they are asking DO. Again I can see ये सारे कौन से दो ट्रायंगल्स के साइड्स है. ऊपर वाले छोटे ट्रायंगल का एक साइड है एंड नीचे वाले बड़े ट्रायंगल के दो साइड्स है. ओके, सो मुझे बेसिकली अभी हिंट मिल गया कि दो ट्रायंगल्स के ही सारे साइड्स दिए, यानी वो दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, उससे मुझे आ जाएगा. ओके, सो अगेन द सेम स्टेप्स. तुम्हें एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मिल जाएगा और तुम्हें दूसरा एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स लेना पड़ेगा. यू कैन सी अ जेड हियर, राइट? यहाँ पे ऐसा एक जेड दिख रहा है तुम लोग को. उस जेड में से ऑल्टरनेट एंगल्स निकाल दो, उसको इक्वल बता दो एंड देन प्रूव दैट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. प्रॉपर्टी यूज करो, प्रॉपर्टी से सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा. ओके, आई हैव आल्सो रिटन द स्टेप्स फॉर यू. I'm going to wait for 5 seconds for you to pause and try to solve the sum by yourself. It's very similar to the previous sum. That's why I took so much time in explaining the previous sum. Okay, previous sum ko dekho, very similar to that. I'm going to wait for 5 seconds, pause the video and try to solve it by yourself.
Okay, I hope you all have either solved the answer, solved the entire sum and have got the correct answer. And even if you were stuck somewhere or you got the wrong answer, it's good because now you're going to see where you have made mistake and you're going to make some progress. Okay, अगर तुम लोग directly मेरा explanation सुन रहे हो, तुम लोग खुद से solve करके try करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, then you're not going to learn. Remember, at board exam में you have to solve new sums. जो टेक्स्ट बुक में दिए सेम टू सेम सम्स नहीं आने वाले. So you should know how to solve sums. So try to solve it by yourself. Okay. So first prove one set of alternate angles to be congruent. Very similar to the previous question. पहले तुम लोग बोले कौन से दो साइड्स पैरेलल है, तो साइड ए बी पैरेलल टू साइड डी सी, ये गिवन था. उसमें ट्रांसवर्सल क्या है, बी डी इज द ट्रांसवर्सल, तो वो भी लिख दिया. नेक्स्ट अभी ऑल्टरनेट एंगल्स ले लो, डी बी ए. सो डी बी ए ये वाला एंगल है, डी बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीडीसी. सो बीडीसी इज यहाँ पे, राइट. सो ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल. ओके, और कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या है, इक्वल टू साइन के ऊपर वो सिमिलैरिटी का साइन डाल देने का. So these two angles are congruent and the reason is alternate angles. But again हमें पता है कि नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग को दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट सॉरी सिमिलर प्रूफ करना है, इसलिए उसका एंगल का नाम बदल दिया. सो डी बी ए के जगह पे ओ बी ए लिख दिया. एंगल सेम है, बस नाम अलग है, बट वो एंगल अभी इस छोटे ट्रायंगल का एंगल है. नेक्स्ट बी डी सी को वो लोग ने ओडीसी लिख दिया. यहाँ पे ओडीसी, बी तक जाने की जरूरत नहीं है. अगेन क्यों, ताकि छोटे ट्रायंगल का एंगल बन जाए. एंड एंगल रिमेन्स द सेम, बस नाम हम लोग अलग दे रहे हैं. ओके, एंड द रीजन इज डी ओ बी, डी डैश ओ डैश बी, यानी कि डी ओ और बी तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं. एंड इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. नेक्स्ट प्रूव द टू ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर. सो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कंसीडर द टू ट्रायंगल्स. कौन से ट्रायंगल्स है, ओ बी ए, ओके, दिस स्मॉलर ट्रायंगल, एंड ओ डी सी, दिस स्मॉलर ट्रायंगल. ओके, नेक्स्ट पहला ये जो ऊपर जो दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, उसको लिख दो, फ्रॉम 1 लिख दो. नेक्स्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सो बी ओ ए, सो दिस इज द एंगल, एंड डी ओ सी ये एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे है, सो दे आर ऑलवेज इक्वल. सो दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव हो गए यूजिंग ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी और एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. अभी प्रॉपर्टी यूज करो. तुम लोग को कौन से चाहिए, ए बी चाहिए, राइट. सो ए बी यहाँ पे आ गया, सो ए बी अपॉन सी डी आ जाएगा. फिर तुम लोग को सी डी भी आ गया, ओ बी चाहिए, सो ओ बी अपॉन ओ डी आ जाएगा. सो ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन डी सी. सिर्फ ये दो ही साइड्स यूज करो, तीनों लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, जो तुम लोग को दिया है, जो पूछा है, उसके हिसाब से तुम्हें चूज करना है कौन से साइड्स करस्पॉन्डिंग लेने हैं. ओके, सो ओ बी अपॉन ओ डी ले लिया, ओ बी अपॉन ओ डी, एंड ए बी अपॉन डीसी. ओके, ऊपर वाला. नाउ सब्स्टिट्यूट, यू नो ओबी का वैल्यू क्वेश्चन में 15 दिया है, एबी का वैल्यू क्वेश्चन में 20 दिया है, डीसी का वैल्यू क्वेश्चन में 6 दिया है. देन क्रॉस मल्टीप्लाई, ओडी यहाँ पे जाएगा, सो यू विल गेट 15 into 6 divided by 20. सो यहाँ पे 15 into 6 divided by 20 मिल गया. देन यू स्टार्ट कैंसलिंग. आई थिंक दिस विल गो इन 5 का टेबल. 5 3s are 15, 5 4s are 20. देन अगेन 2 से कट करो, एंड यूजिंग दोस कैलकुलेशन, एक बार तुम लोग ने कैलकुलेशन कर लिया, राइट द फाइनल आंसर इन पेंसिल बॉक्स. द फाइनल आंसर यू विल गेट एज, वेटिंग फॉर दैट ब्लैक बार टू गो अवे, एज 4.5. ओके, 4.5 तुम लोग आंसर आ जाना चाहिए. एंड अगेन पुट दैट इन पेंसिल बॉक्स. दैट्स हाउ यू गेट द 3 marks in such a type of question. Okay, you're going to move ahead. Question 7, again the same thing. I'm going to wait for 5 seconds. Please pause the video, read the question, and think how you will solve the question. Then we will come back, discuss, and then you will solve by yourself. Okay, so I'm waiting for 5 seconds. Okay, 5 seconds are up. I hope you paused the video and read the question and have some idea कैसे solve कर सकते हैं. ये भी बहुत similar है पिछले सम से, बस छोटा सा difference है. Okay, so ये जो बॉक्स है उसको कैसे पढ़ते हैं, बॉक्स को बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल. ओके, 4 साइड्स है ना, 4 साइड्स वाले फिगर को, कोई भी 4 साइड्स हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रेपीजियम हो, कुछ भी हो, 4 साइड्स होंगे तो उसको क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं, 3 साइड्स होंगे तो उसको ट्रायंगल बोलते हैं. सो क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, कहाँ पे एबीसीडी, यहाँ पे एबीसीडी. ओके, सो क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम. व्हाट इज पैरेललोग्राम? ट्रेपीजियम में कोई भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए. पैरेललोग्राम में दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जानी चाहिए. ओके, सो ये लेफ्ट साइड का और राइट साइड का साइड भी पैरेलल होगा, और ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों साइड्स
दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होंगे, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, पॉइंट ई ऑन साइड बीसी, पॉइंट ई यहाँ पे है, ऑन साइड बीसी यहाँ पे है, लाइन डीई इंटरसेक्ट्स रे ए बी, रे ए बी कहाँ पे, ये ए बी है राइट, सो ए बी रे है, रे मतलब वो आगे चलते जाएगा, सो रे ए बी यहाँ पे आ गया। ओके, लाइन डीई इंटरसेक्ट, सो डीई यहाँ पे है, डीई को अगर तुम आगे एक्सटेंड करोगे तो टी पे इंटरसेक्ट हो जाएगा। ओके, सो डीई एंड ए बी आर गोइंग टू मीट एट पॉइंट टी। ओके, ये बताया नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट, प्रूव दैट डीई इंटू बीई इज इक्वल टू सीई इंटू टीई। ओके, सो अगेन लेट अस सी ये कौन से साइड्स है, डीई, डीई मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट, बीई, बीई मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सीई इज हियर एंड टीई इज हियर। सो अगेन ये सारे सिर्फ दो ट्राइंगल्स के साइड्स है, ये सारे जो कुछ प्रूव करने बोला है उसमें सब सब जो टर्म्स है, छोटे छोटे साइड्स है, वो सारे दो ट्राइंगल्स के पार्ट्स है। विच आर दो ट्राइंगल्स, डी ई सी, ये जो छोटा सा ट्राइंगल है राइट साइड में बना है, और ये नीचे वाला ट्राइंगल ई बी टी, ये दो ट्राइंगल्स के सारे साइड्स है। तो अगेन हिंट वी नो, ये पूरा एक्सरसाइज सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे बेस्ड है, तो बेसिकली इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दोगे और उसका प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। कौन से दो ट्राइंगल्स प्रूव करने हैं सिमिलर, ये राइट साइड में जो छोटा सा ट्राइंगल है और ये जो नीचे ट्राइंगल बना है वो, ये दोनों ट्राइंगल्स को तुम लोगों ने सिमिलर प्रूफ कर दिया, उसके प्रॉपर्टी यूज करके वेरी इजीली विल गेट दिस प्रूफ। Okay, so again I'm going to wait for 5 seconds, very similar to the previous sum, just follow the same steps. I've also written the steps here for you all. I'm going to wait for 5 seconds, pause the video and try to solve the entire sum by yourself. अगर तुम लोग को पूरा का पूरा sum खुद से solve कर लिया तुम लोग ने, और confidence will increase a lot that you know this thing and you can solve the sum by yourself. So try to solve this by yourself. Okay, okay, I hope most of you all have found the answer, and even if you did not find the answer, if you have tried to solve the problem, कहीं पे भी अटक गए, तुम लोग को अभी पता चलने वाला है कि तुम लोग कहाँ पे अटके और क्यों अटके, and that is going to lead to progress. Okay, you're going to increase your understanding of mathematics, so make sure you are trying all the sums. Okay, so first step क्या था, again यहाँ पे I can see ये एक this is parallel to this side, right? That is one set of parallel lines. Secondly, this part, okay, ये बड़ा सा AT and DC, these are also parallel, right? क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ऊपर नीचे दोनों के साइड्स पैरेलल होंगे, लेफ्ट राइट वाले भी साइड्स पैरेलल होंगे। सो ए बी लेफ्ट वाला साइड है जिसको एक्सटेंड करके AT बन गया, और राइट साइड वाला, राइट में जो साइड है वो है D, तो ये दोनों भी पैरेलल है। तो यहाँ पे तुम लोग को Z दिख रहा है क्या? ओके, ऑल्टरनेट एंगल से हम प्रूव करेंगे, राइट? एक तो काफी इजी है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये वाला एंगल छोटा सा और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे यूजिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बट दूसरा अगेन यू हैव टू यूज ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। सो यहाँ पे Z कहाँ पे दिख रहा है ऐसे, ये देखो, कैन यू सी द Z नाउ, TBCD, यहाँ पे एक छोटा सा Z दिख रहा है। ओके, सो तुम लोग को वही Z यूज करके ऑल्टरनेट एंगल्स प्रूव करना है, एंड इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस सम। ओके, so first you will say ABCD is a parallelogram which is given in the question, then you have to say which sides are parallel. Okay, so AB is parallel to CD, AB will be parallel to CD. Why? Because they are opposite sides of a parallelogram, and opposite sides of a parallelogram are parallel. But तुम लोग को सिर्फ AB और CD यूज करना है क्या? नहीं, तुम लोग को AT यूज करना है, राइट? तुम लोग को AT यूज करना है। सो AB की जगह पे AT लिख दिया और CD को वैसे के वैसे लिख दिया, और रीजन क्या दिया, A dash B dash T, यानी A, B and T, all of them lie on the same line, all 3 points lie on the same line, इसलिए AB को मैं AT भी लिख सकता हूँ। Okay, so that's my second step here, and so अभी AT is parallel to CD लिख दिया, AT is parallel to CD लिख दिया मैंने। ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, DT, right? DT will be my transversal, so वो भी लिख दिया, and sec DT is their transversal. So कौन से दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एंगल ATD, ATD, okay, ये वाला एंगल, angle ATD will be congruent to angle CDT. Where is CDT? यहाँ पे CDT, this angle. So these two angles will be congruent because they are alternate angles. क्योंकि यहाँ पे मुझे Z दिख रहा है, right? So alternate angles मेरा प्रूव हो गया। अगेन मुझे छोटे से इस छोटे ट्राइंगल और इस छोटे ट्राइंगल में प्रूव करना है आगे जाके, तो मैं उन एंगल्स का नाम चेंज कर लूंगा। तो यहाँ पे एंगल क्या है, ATE, बट मेरा ट्राइंगल में सिर्फ B आ रहा है, A तक नहीं जा रहा है मेरा ट्राइंगल। सो मैं BTD के जगह पे मैं लिखूंगा BTE। ओके, सो सी ATD
ATD, वहां तक जाने से अच्छा मैं सिर्फ BTE लिखूंगा। ओके, सो ATD के पे BTE लिख दिया। उसका रीजन क्या होगा? A डैश B डैश T तीनों पॉइंट सेम लाइन पे एंड D डैश E डैश T। सिमिलरली राइट साइड में देखो CDT, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, यहाँ पे T है, बट ये जो छोटा ट्राइंगल है T तक नहीं जाता है, सिर्फ E तक जाता है। सो CDT के जगह पे आई विल राइट CDE, सिर्फ यहां तक, ताकि वो सिर्फ छोटे से ट्राइंगल का एंगल बन जाए। ओके, सो अगेन CTD को CDE लिखा है एंड द रीजन विल बी द सेम, क्योंकि ABT सेम लाइन पे आते हैं, DET भी सेम लाइन पे आता है। ओके, एंड आई हैव रिटन दैट एज इक्वेशन नंबर 1 भी, क्योंकि वो आगे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने में आई विल बी यूजिंग दैट। नेक्स्ट, प्रूव द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हाउ विल यू प्रूव? इन ट्राइंगल BTE, so BT is here, ये नीचे वाला ट्राइंगल, एंड CD is here, ऊपर वाला ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट, पहले ये जो ऊपर ऑल्टरनेट एंगल्स प्रूव किया था कॉन्ग्रुएंट है उसको लिख दो, फ्रॉम 1 लिख दो। नेक्स्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिख दो। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? BET एंड CED। ओके, सो BET congruent to CED, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, रीजन लिख दिया। देयरफॉर बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर यूजिंग एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उसके प्रॉपर्टीज को यूज करो सिमिलर ट्राइंगल्स के। क्या प्रॉपर्टीज है? सी, तुम लोग को ये साइड्स को यूज करना है। सो DE कहां पे है? DE आई कैन सी हियर, सो DE अपॉन T आ जाएगा। एंड नेक्स्ट BE यहाँ पे, सो BE फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ पे भी फर्स्ट और थर्ड आएगा, सो BE अपॉन CE आ जाएगा। ओके, सो दे हैव रिटन TE अपॉन DE इज इक्वल टू BE अपॉन CE। दिस इज यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। रीजन क्या लिखा हुआ है? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, बिकॉज सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स proportion में होते हैं। ओके, नाउ just cross multiply and you will get the answer. Once you cross multiply you will get DE into BE is equal to C into T, जो तुम लोग को प्रूव करने बोला था। ओके, सो अगेन वेरी सिंपल, वेरी सिमिलर सम टू द प्रीवियस सम। पिछले 3 सम जो हम लोग ने सॉल्व किए सब काफी सिमिलर है। ओके, ऑल यू हैव टू डू इज, वो जो ऑल्टरनेट एंगल्स कहां पे नहीं, उससे भी पहले कौन से दो ट्राइंगल्स कंसिडर करने ये अच्छे से पहचान लेना। वंस यू गेट कौन से दो ट्राइंगल्स वी हैव टू कंसिडर, देन उसमें कैसे ऑल्टरनेट एंगल्स लेना है और उसको कैसे अच्छे से लिखना है विद गुड रीजंस। That's what you have to learn and that's what you have to practice. The more you practice, the easier it will become. Okay, next we are going to move. It's a very simple sum. Okay, I'm not going to solve this. It's a very simple sum, 8th sum. Okay, so ये यहाँ पे फिगर दिया है, I can very easily see कि give me a minute. Okay, seg AC and BD intersect each other at point P. So seg AC is here and BD is here. Both of them intersect at point P. And तुम लोग को दे दिया AP upon CP is equal to BP upon DP. अगर तुम लोग को ये पता है, then you can very easily prove that these two triangles are similar. कैसे? यहाँ पे तुम लोग को एक एंगल तो मिल गया। ओके, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल विल बी इक्वल बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर क्या बोला है? AP यहाँ पे है अपॉन CP यहाँ पे इज इक्वल टू BP यहाँ पे है एंड DP यहाँ पे है। सो ये कौन से टेस्ट से प्रूव कर सकते हो तुम लोग? साइड एंगल साइड से टेस्ट से तुम लोग ये प्रूव कर सकते हो। इट्स अ 3 स्टेप क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी, प्लीज डू दिस बाय योरसेल्फ। ओके, बस इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। पिछले 3 सम्स में हम लोग ने ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया, उसमें AA टेस्ट से प्रूव किया, इसमें बस SAS टेस्ट से प्रूव करना है। ओके, साइड्स के बारे में तुम लोग को दे दिया, सिर्फ एंगल्स को वर्टिकली ऑपोजिट साइड्स बता के तुम लोग को सॉल्व करना है। ओके, आई हैव इवन टोल्ड यू द एंटायर आंसर हाउ टू सॉल्व, सो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट 9th sum. I'm going to wait for 5 seconds, pause the video, read the question, see the diagram and think how you will solve this sum. Okay, I'm going to wait for 5 seconds to pause, for you all to pause. Okay, I hope you pause the video and have some idea how can this sum be solved. Again, it's a 3-mark sum. Okay, so in the adjoining figure, in triangle ABC, where is ABC? Over here. Okay, in triangle ABC, point D is on side BC. Point D is on side BC such that BAC, okay, BAC यहाँ पे बड़े ट्राइंगल का एंगल है एंड ADC यहाँ पे राइट साइड वाले छोटे ट्राइंगल का एंगल है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो प्रूव क्या करना है? CA स्क्वायर, सो CA कहाँ पे है? यहाँ पे है, CA स्क्वायर CB इज इक्वल टू CB इंटू CD। CB यहाँ पे बड़े ट्राइंगल का साइड एंड CD यहाँ पे छोटे ट्राइंगल का साइड।
सो अगेन व्हाट इज द हिंट, व्हाट इज द पैटर्न, तुम लोग हमेशा देखोगे कौन से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, ये अगर तुम लोग को अच्छे से पता चल गया तो एंटायर सम इज वेरी सिंपल। सो सी बी दो एंगल कौन से दिए, एक तो ये बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल दे दिया और एक राइट साइड वाले छोटे ट्राइंगल का एंगल दिया, दैट्स योर फर्स्ट हिंट, हिंट नंबर वन। नेक्स्ट प्रूफ दैट में कौन से दो साइड्स दिए, सीबी, सीबी बड़े ट्राइंगल का साइड है, सीडी ये राइट साइड वाले छोटे ट्राइंगल का साइड है। सेकंड हिंट, यानी कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है एबीसी उसको प्रूव करना है, उसको किसके सिमिलर प्रूव करना है, एडीसी, ये जो राइट साइड वाला छोटा ट्राइंगल है उसके सिमिलर प्रूव करना है। once you do that, just use the property of similar triangles and you should be done with the answer. Okay, so again I'm going to wait for 5 seconds. You all know what to do now. You all have practice of around 3-4 sums now. You all should be able to do this, and you, if you are able to solve this and get the correct answer, you will feel much more confident about yourself. Okay, and even if you don't, you will understand where you're doing mistakes and you will improve. Okay, so please try to solve this answer, solve this question by yourself. I'm going to wait for 5 seconds for you all to pause and try this sum. Okay, I hope majority of you all were able to solve, and if you were not able to solve, that's okay. We are going to see, we are going to discuss how to solve this correctly. You can check your answers and you can see where you're making mistakes. Okay, so first step क्या है, हम लोग को दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर ले। कौन से दो ट्राइंगल्स मैंने बताए थे, बड़े वाले एक एबीसी है और एक छोटा वाला राइट साइड वाला एडीसी, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना। सो अगेन 3 स्टेप्स में प्रूव करते हैं। फर्स्ट इज कंसिडर द ट्राइंगल्स, सो बी ए सी यहाँ पे है, बी ए सी एंड एडीसी, एडीसी इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। सो फर्स्ट बीएससी इज इक्वल टू एडीसी, बीएससी कहां पे, यहाँ पे बीएससी इज कॉन्ग्रुएंट टू एडीसी, एडीसी यहाँ पे, तो ये तो गिवन था राइट। सो एक एंगल तो हम लोग को फ्री में मिल गया था कि ये जो क्वेश्चन में दे दिया था इक्वल है। सेकेंड एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, इफ यू सी बड़ा जो ट्राइंगल है उसमें एंगल सी आता है और ये जो छोटा ट्राइंगल है उसमें भी एंगल सी आता है, तो दोनों ट्राइंगल्स में एंगल सी कॉमन एंगल है राइट, तो दोनों में वो इक्वल भी होंगे। सो एंगल बीसीए, बीसीए यहाँ पे ऐसे एंगल दिया है, एंड नेक्स्ट एंगल एडी एसीडी, एसीडी यहाँ पे ऐसे दिया। ओके, सो ये दोनों कॉमन एंगल्स है, सेम एंगल्स है, तो ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऑब्वियसली इक्वल होंगे, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। रीजन लिखा है कॉमन एंगल। ओके, दैट्स व्हाई दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर यूजिंग एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। नाउ यूज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या प्रॉपर्टी है, ये जो साइड्स है वो आ जाने चाहिए प्रोपोर्शन में। कैसे, पहले है सी ए, तो सी ए ले लो, तो सी ए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो सी ए है वहां पे भी सी ए बनेगा। सो सॉरी, यहाँ पे जो सी ए है यहाँ पे सी डी बनेगा। अगेन जब तुम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख रहे हो, यू नीड नॉट सी द फिगर ऑल्सो। अगर तुम लोग ने ट्राइंगल्स को अच्छे से कंसिडर किया, डायरेक्टली ट्राइंगल में से भी आ सकता है, बट फॉर दैट यू नीड टू नो द ट्राइंगल वेरी वेल। तुम लोग ने सही से 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में लिखा होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स चेक 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में है कि नहीं। एंगल बी और एंगल ए इक्वल है क्या, यहाँ पे है एंगल बी और यहाँ पे है एंगल ए, ये छोटा वाला एंगल, आर दोज इक्वल, आई डोंट नो। नेक्स्ट 2 एंगल्स चेक करते हैं, एंगल ए और एंगल डी। सो बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल ए और छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल डी, ये दोनों इक्वल है, यस दे वर गिवन। नेक्स्ट एंगल सी कॉमन एंगल है, सो कॉमन एंगल है, यानी तीसरा एंगल जो फर्स्ट एंगल था बी और ए वो भी इक्वल होंगे। सो हम लोग ने 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में लिखा है। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या है, वो हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था कि सारे एंगल सेम होने चाहिए। सो ये एक बार तुम लोग ने 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में सही से लिख दिया ट्रायंगल्स को, तो तुम लोग को डायग्राम भी देखने की जरूरत नहीं है जब तुम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख रहे हो। ओके, सो इफ यू राइट सी ए, तो यहाँ पे सी डी आ जाना चाहिए, तो ये देखो सी ए अपॉन सी डी आ गया। नेक्स्ट सीबी, सीबी क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा सीबी, सीबी यहाँ पे थर्ड है फिर बाद में फर्स्ट है, सो सीबी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी थर्ड पहले लो फिर बाद में फर्स्ट लो, सी ए, सो सीबी अपॉन सी आ गया। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हियर एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सी अपॉन सी ए इंटू सी आ जाएगा, विच विल बी सी ए स्क्वायर। सो दैट्स योर फाइनल आंसर। अगेन द रेसिपी सेम है, ये जो पकवान हम लोग बना रहे हैं उसका सेम रेसिपी है। दो ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करो, उस दो ट्राइंगल्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको किसी भी तरीके से सिमिलर प्रूफ कर दो। सिमिलर प्रूफ कर दिया, देन यू हैव टू प्रूव दैट, सॉरी तुमको उनका यू विल हैव टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, दैट्स योर थर्ड स्टेप। बट प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स में दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तुम लोग ठीक से करस्पॉन्डिंग साइड्स ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। आई एम श्योर बहुत लोगों ने वहां पे गलती की होगी कि तुम लोग गलत साइड्स कंसिडर कर रहे हो। यू हैव टू कंसिडर द करेक्ट करस्पॉन्डिंग साइड्स, and once that is clear, using very simple calculations you generally find the final answer. Okay, so you're done also with the ninth sum. The last sum for this learning session and this exercise is the fourth sum, जो मैंने बोला था हम लोग लास्ट में करेंगे। Okay, so again do the same thing. I'm going to wait for 5 seconds, pause the video, read the question
and think how you will solve the question. Okay, I'm going to wait for 5 seconds. Okay, I hope you all read the question and you'll have some idea. Again, this question also follows all those basic recipes of solving these type of questions. Okay, so let us read the question first. In triangle ABC, so ABC a bada wala triangle hai. Okay, ABC. So this bigger triangle, AP is perpendicular to BC. So AP यहाँ पे है, is perpendicular to BC यहाँ पे है. Next, BQ is perpendicular to AC. So BQ यहाँ पे है, is perpendicular to AC यहाँ पे है. Okay. Next, B dash P dash C. So B dash P dash C यानी ये B, P और C ये तीनों points सेम लाइन पे लाई करते हैं. ओके, एंड A dash Q dash C. So A dash Q dash C यानी ये तीनों पॉइंट्स भी सेम लाइन पे लाई करते हैं. सेम लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स हैं. देन प्रूव दैट ट्राइंगल CPA कहाँ पे है? CPA, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है CPA, ओके, इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB, ये जो उल्टा राइट एंगल ट्राइंगल है CQB. ओके, ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है. एंड वंस यू प्रूव दैट सिमिलर तो AC फाइंड आउट करना है. और ये थोड़े वैल्यूज दे दिए कुछ साइड्स के. सो तुम लोग को स्टेप्स तो क्वेश्चन में ही दे दिया, फोर्थ क्वेश्चन में. पिछले सारे क्वेश्चंस में बोल नहीं रहे थे कि पहले सिमिलर प्रूव करो फिर बाद में फाइंड आउट करो. वो तुम्हें खुद सोचना था. अभी ये फोर्थ सम में तो तुम लोग को दे दिया कि पहले सिमिलर प्रूव कर दो. सो इट्स अ हिंट फॉर यू. एंड फिर उसके प्रॉपर्टी से तुम लोग को ये AC मिल जाएगा. ओके, सो अगेन नाउ यू ऑल नो व्हाट टू डू. इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है और फिर उसके प्रॉपर्टीज यूज करके AC को फाइंड आउट करना. So again, pause the video and try to solve the entire sum by yourself. You all should be able to solve it by yourself. Okay, because it's very similar to the previous sums. Okay, now I'm going to shut up and I'm going to wait for 5 seconds. Okay, I hope now at least majority of you all were able to solve the sum correctly. Okay, and it's okay if you did not solve it correctly. The more you practice these kind of sums by yourself, खुद से practice करोगे, the more easier it will be. Okay, trust me, जितना ज़्यादा practice करोगे उतना easier होते जाएगा. So don't be disheartened if you did not get the correct answer. We'll see where the mistake was. Okay, so first ये दो triangles को similar proof करना था. तो the step one is consider the two triangles. फिर अभी इन दो triangles में एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें पता है राइट. यहाँ पे APC एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है और दूसरे में CQB भी राइट एंगल ट्राइंगल है राइट. सो राइट एंगल है 90 डिग्रीज है. सो ये पहले वो लोग ने एंगल ले लिया. ईच एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्रीज. ओके, क्योंकि दोनों एंगल्स 90 डिग्रीज है, क्वेश्चन में दिया था. नेक्स्ट, दी एंगल सी दोनों में. अभी ये देखो ट्राइंगल APC में भी एंगल C आ रहा है राइट, एंड ट्राइंगल CQB में भी एंगल C आ रहा है. तो ये जो एंगल C है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है. तो उस एंगल C को वो लोग ने ले लिया. ACP कहाँ पे है? ACP. ओके, वो जो सीधा राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एंगल ले लिया. नेक्स्ट, BCQ यहाँ पे है, वो जो उल्टा राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एंगल ले लिया. सो दोनों में सेम है, वो एंगल कॉमन है. सो दोस टू एंगल्स विल आल्सो बी सेम, इक्वल और कॉन्ग्रुएंट. एंड द रीजन इज कॉमन एंगल. सो दो एंगल्स तुम लोग ने कॉन्ग्रुएंट बता दिए तो दो ट्रायंगल्स वो सिमिलर हो जाएंगे यूजिंग AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. नाउ यूज द प्रॉपर्टीज कैसे यूज करोगे? तुम लोग को क्या पता है, AP दे दिया तो पहले AP ले लो. AP अपॉन यहाँ पे अगर थर्ड और सेकंड यूज किया तो यहाँ पे भी तुम लोग कौन सा यूज करोगे? थर्ड एंड सेकंड. सो BQ, AP अपॉन BQ आना चाहिए. सो AP अपॉन BQ यहाँ पे लिख दिया. नेक्स्ट, AP BQ ले लिया, BC ले लो. सो BC अगेन व्हाट आई एम चेकिंग कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और उन्हीं साइड्स को मैं लूंगा, तीनों के तीनों साइड्स को नहीं लूंगा मैं. सो BC कहाँ पे है? BC इज हियर. सो BC में क्या आ गया तुम्हारा? सेकंड और फर्स्ट, सॉरी थर्ड और फर्स्ट वर्टेक्स आ गया. सो यहाँ BC लिख दिया. सो इसमें क्या आएगा? थर्ड एंड फर्स्ट वर्टेक्स. सो AC आ जाएगा. सो AC अपॉन BC यहाँ पे आ गया. सो दिस इज यूजिंग करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स बिकॉज these two triangles are similar, इसलिए हम लोग ये ऐसा लिख सकते हैं. The reason क्या लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं? Corresponding sides of similar triangles. Okay, so now substitute. AC का वैल्यू नहीं पता है, उसको ही ढूंढना है हमें. BC का वैल्यू you know was given 12, AP का वैल्यू was given 7, BQ का वैल्यू was given 8. All of this was given in the question. Now just cross multiply 12 वहां पे चला जाएगा और इसको solve कर दो. So 4 3s are 12, 4 2s are 8 हो जाएगा. 3 7s are 21, 21 divided by 2 हो जाएगा.
So 21 divided by 2 should give you 10.5. So that's your final answer. Put the final answer in a pencil box and you should be done with the sum. So with that, yes, with that we are done with the entire practice set 1.3 also. Three of them is three of them we studied in the last learning class, and the remaining we are studying in this learning class. The only thing is you all should know करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यू ऑल शुड नो ऑल्टरनेट एंगल्स. इंडियन एंगल्स यूज नहीं हुए बट कहीं पे तो आगे यूज हो सकते हैं, तो ये तीन कंसेप्ट्स काफी क्लियर होने चाहिए. यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, एंड वंस यू प्रूव देम सिमिलर, उसके बाद तुम लोग को ये भी पता होना चाहिए कैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स करेक्टली लेने हैं. ओके, अगर तुम लोग ने अच्छे से ट्राइंगल्स के नाम लिख दिए देन, और वन टू वन करस्पॉन्डेंस. व्हाट इज वन टू वन करस्पॉन्डेंस? अगर एक एंगल फर्स्ट ट्राइंगल का और दूसरा एंगल सेकंड ट्राइंगल का सेम है तो उन दोनों को पहले लिखो. देन द सेकंड जो एंगल तुम लोगे, सेकंड जो वर्टेक्स लोगे, सेकंड ट्राइंगल का भी सेम वर्टेक्स का एंगल इक्वल होना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइंगल्स में. ओके, दैट्स नोन एज वन टू वन करस्पॉन्डेंस. अगर तुमने ट्राइंगल के नाम सीधे लिख दिया, यू डोंट इवन हैव टू लुक एट द डायग्राम, सीधा उस ट्राइंगल के नाम से तुम लोग करस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हो, सीइंग क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछा है और क्या प्रूव करने बोला. ओके, एंड देन इट्स वेरी इजी टू सॉल्व द रिमेनिंग part of the sum. So that's the recipe for sums in this practice set. Generally दो triangles को similar prove करना होगा. कौन से दो triangles prove कर ले, that's the tricky part. Okay, so that's it for this learning session, and in the next learning session we will begin with our next practice set, which is practice set 1.4. Okay, till then, peace.